Good morning, children. This is first video of sixth chapter, that is Bhakti, Sufi traditions, changes in religious beliefs and devotional text from 8th to 18th century. Till yet, we have studied the events and the text from 6th century BCE to 6th century CE, and now in this chapter we will study the events, the religious beliefs and practices which was established in our Indian society from the time period of 8th century to 18th century. So dear children, till yet we have seen whatever messages given in Ved, Purans and Upanishad, how it was flourished and developed, and how it was converted in stones and temples. How these messages were perceived by historians and the archaeologists, and how did art historians find out the meaning of sculptures and stories hidden in stone. But in this chapter, we will see how these bhakti traditions and practices changed and formed a new way of life. So, in mid-first millennium CE, the landscape of this subcontinent was dotted with a variety of religious structures, stupas, monasteries, chaitya, vihars, and different temples. Along all these, many more reconstructed from textual traditions, including Purans, which was shaped in the same time period. Yet, other remains only faintly visible in textual and visual records, and we will see whatever left in textual and visual records we will study and discuss in this chapter. So religious practices and beliefs we are going to discuss in this chapter. And dear children, अभी तक हमने देखा कि 6th century BCE से 6th century CE तक किस तरह वेद, पुराण एंड उपनिषद के वर्सेज एंड टेक्स्ट को स्कल्पचर एंड स्टोरीज के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब हम देखेंगे कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड भक्ति ट्रेडिशन में किस तरह के चेंज आए, किस तरह लोगों ने अपने ओरिजिनल टेक्स्ट एंड प्रैक्टिसेस में मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन करना शुरू किया, नए गॉड एंड गॉडेसेस इमर्ज होने लगे, तो इन नए अवतरित देवी देवताओं की पूजा पद्धति में भी चेंजेज आने शुरू हुए, और वो क्या चेंजेस थे, कितने कॉम्प्लेक्स वे में ये हमारी इंडियन सोसाइटी में स्टैब्लिश्ड हो गए, घुल मिल गए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो वी विल सी योर the different picture here in this slide, the mosques and natras and the statues, and now we will see the न्यू टेक्सुअल सोर्सेज, किस तरह से न्यू टेक्सुअल सोर्सेज जो थे वो चेंज होना शुरू हुआ. तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 टाइप्स जो थे, 4 तरह से लोगों ने ये नए टेक्स्ट को रिवर्स करना और उसे मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाई करना शुरू किया. सो फर्स्ट वन दैट वाज कंपोजिशंस एट्रीब्यूटेड टू पोएट सेंट्स, most of whom expressed themselves orally in regional language. जो compositions poet and saints के द्वारा लिखे गए थे, खुद ओरिजिनली उन्होंने लिखे थे, उसको ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा उनकी रीजनल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना और उसे प्रिजर्व करना और उसे ट्रांसमिट करना, उसे लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, प्रोपगेट करना शुरू हुआ. The second form, these compositions which were often set to music were compiled by disciples or devotees generally after the death of the poet saint. अब कुछ poet saints जो थे वो अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपने जो thoughts थे और अपने जो opinions थे, उनके जो compositions थे, वो ordinary people तक transfer हो गए. अब कुछ जो थे उनके disciples and devotees के द्वारा उनके death के बाद जो पोएट एंड सेंट थे, उनके डेथ के बाद जो चीज़ें उनके डिसिपल्स एंड डिवोटीज़ ने उसको टेक ओवर किया और उसे कंपाइल करके फिर जनता के ऑर्डिनरी पीपल के बीच में लाए. तो सेकेंड फॉर्म. थर्ड फॉर्म था कि दीज ट्रेडिशंस वर फ्लूड जनरेशंस ऑफ डिवोटीज टेंडेड टू एलोबरेट ऑन द ओरिजिनल मैसेज. अब जो ओरिजिनल मैसेज थे उस जनरेशन्स तक इनके जो डिवोटीज़ थे, इनके जो डिसिपल्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appeared problematic. या तो उनको ओरिजिनल रूप में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे, या उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, और नहीं तो उनके कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि प्रॉब्लमेटिक लोगों के लिए हो रहे थे, जो उनके डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में ये प्रॉब्लमेटिक हो रहे थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया. फोर्थ था कि historians also draw an hagiography and biographies of saints
written by their followers or members of their religious sect. अब हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने फोर्थ फॉर्म में उन्होंने अडॉप्ट किया टेक्स्ट को, जो हेजियोग्राफी एंड बायोग्राफी लिखी गई थी या तो उनके डिसिपल्स के द्वारा, उनके फॉलोअर्स के द्वारा, या पर्टिकुलर किसी रिलीजियस सेक्ट के द्वारा अपने पोएट सेंट के बारे में या उनके जो धर्मगुरु थे उनके बारे में. दिस मे नॉट बी लिटरली एक्यूरेट बट अलाउ अ ग्लिम्प्स इनटू द वेज इन विच डिवोटीज परसीव्ड द लाइव्स ऑफ दीज पाथ ब्रेकिंग वेमेन एंड मेन. ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लिटरली एक्यूरेट नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके जो पाथ ब्रेकिंग वेमेन एंड मेन थे, जो पोएट सेंट्स थे, जो उनके धर्मगुरु थे, जो उनके पथ प्रदर्शक थे, उनकी लाइफ की कौन कौन सी उनकी लाइफ की ऐसी ग्लिम्पसेस और उनकी लाइफ की कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ों को लोगों ने हाईलाइट किया और उसे अडॉप्ट किया. तो दीज वर द 4 ways by which the text recognized and collected to study the different religious practices and belief. So most striking feature of this phase is increasing a wide range of god and goddesses in sculpture as well as in text. सबसे जो मेन इवेंट हम इस पीरियड का कह सकते हैं कि नंबर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इमर्ज्ड in this subcontinent and in the life of the people. So this indicates the continued and even extended worship of the major deities Vishnu, Shiva and the goddess. अब जब डिफरेंट अवतार होंगे, डिफरेंट इमर्जेंस होंगे, तो नेचुरली जो पूजा पद्धति है, जो उनके डिफरेंट जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनमें भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और उनमें भी विस्तार होगा. तो ये देखा गया कि जो मेजर डाइटीज़ थे विष्णु, शिवा एंड द डिफरेंट गॉडेसेस, इनकी पूजा पद्धति भी डिफरेंट तरीके से बदलने लगी, उसमें मॉडिफिकेशन होने लगा और उसे नए तरीके से लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया. अभी पिछले उसमें देखा था कि आपने विष्णु के 10 इनकारनेशन हुए इस अर्थ पे, तो और जितने भी इनकारनेशन जो इमर्जेंस उनका हुआ डिफरेंट फॉर्म में, उन सब की अलग अलग पूजा पद्धति लोगों ने एक्सेप्ट की, लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. तो इतने जितने सारे देवी देवता हैं और उनके उतने ही कॉम्प्लेक्स उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स और उनके वे ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस. सो इट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स्ड in this society. So as you know, Vishnu was immersed in the incarnation of 10 avatars as like Shiva and different goddess. So you can imagine, we can imagine the complexity of the religious practices. Now the third one here, a mosaic of religious beliefs and practices. and उसी से रिलेटेड हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से एक मोज़ैक का मतलब होता है कि डिफरेंट कलर्स को एक साथ कंबाइन करके और उसका एक पिक्चर क्रिएट करना और उसे फॉर्म करके उसे दिखाना, उसे शो करना, रिप्रेजेंट करना. तो यहाँ पे मोज़ाइक जो है वो रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए कहा गया कि इट वाज नॉट ओनली वन, डिफरेंट टाइप ऑफ several practices were there established in our Indian society. So it was considered as the mosaic and the integration of cults. So these were two ways of two processes at work. अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट जो हुआ वो किस तरह से हुआ कि 2 तरह की चीज़ें थी. एक तो जो ओरिजिनल ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे उनको डिसेमिनेट किया गया. डिसेमिनेट डज इट मीन प्रोपागेट करना, पब्लिसाइज करना, प्रचार प्रसार करना. So historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least 2 processes at work. 2 तरीके से इन टेक्स्ट का प्रचार प्रसार किया गया. एक तो जो ओरिजिनल ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे उनको लोगों ने पॉपुलराइज करना शुरू किया. दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पौराणिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्सेस एक्सप्लिसिटली मीन्ट टू बी एक्सेसिबल टू विमेन एंड शूद्राज. अब आपने देखा कि जो वेद की जो ऋचाएँ थी, जो वर्सेस थे, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में पुराण में शेपअप किया गया ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच तक हो. उसमें विमेन एंड शूद्रास जो थे उनको भी अलाउ कर दिया गया. सो द फर्स्ट फॉर्म दैट वाज द ओरिजिनल ब्राह्मणिकल आइडियाज़ एंड द सेकेंड वन. At the same time, there was a second process at work, that of the Brahmins accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories. अब जो दूसरा तरीका था इनका कि जो ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने जो लोकल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस थे उनको भी ब्राह्मण्स ने अडॉप्ट करना शुरू किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर दोबारा काम करना शुरू किया और उसे नए फॉर्म में उन्होंने एक्सेप्ट किया. सो इनफैक्ट मेनी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू अ कंटिन्यूअस डायलॉग्स बिटवीन what sociologists have described
as great Sanskritic Puranic traditions and little traditions throughout the land. So this is great tradition and little tradition. This is the most important point of this chapter. So you must we must have to discuss here the great tradition and the little tradition. So what was the great tradition and little tradition? So this term great and little originated by sociologist named Robert रेडफील्ड. एक रॉबर्ट रेडफील्ड करके एक सोशोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये टर्म उन्होंने दिया ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, एंड उन्होंने ओरिजिनेट किया इन 20th सेंचुरी टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी. इस टाइम पीरियड में 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी के बीच में जो दो प्रैक्टिसेस आई और उनको जो कैटेगराइज किया गया, एक सोशोलॉजिस्ट हुए हैं रेडफील्ड, उन्होंने एक टर्म इसे दिया और उन्होंने इस टर्म का ओरिजिनेशन किया. So he found that peasants observed rituals and customs that emanated from dominant social categories including priests and rulers. अब यहाँ पे है कि ग्रेट नाम किसको दिया गया, तो जो प्रेस्ट एंड जो रूरल जो डोमिनेटेड जो कैटेगरी सोशल कैटेगरीज थे, जैसे प्रेस्ट थे, रूलर्स थे, उनके द्वारा कई चीज़ें, कई प्रैक्टिसेस और रिलीजियस मेथड जो थे वो अडॉप्ट किए जा रहे थे. और जब पीजेंट्स ने या जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जब उन्होंने इस डोमिनेटिंग रूलर्स एंड प्रेस्ट के द्वारा अडॉप्ट किए गए कस्टम्स एंड रिचुअल्स को अडॉप्ट किया, तो उसे ग्रेट का नाम दिया. It means the practices which was universally accepted, universally established in the society, and that was adopted by the common people, the ordinary people, that was known as the great tradition. The second one, at the same time, peasants also followed local practices that didn't necessarily correspondent विद दोज ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन. अब यहाँ पे सेकंड है कि कई चीज़ें जो थी लोकल बिलीफ्स थे लोगों के, लोकल डाइटीज़ थे और लोकल कस्टम्स एंड रिचुअल्स थे, जिसको ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर रिवर्क करना शुरू किया. तो जो लोकल डाइटीज़ या लोकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया गया उसको उन्होंने नाम दिया लिटिल ट्रेडिशन. सो दिस वॉज इंक्लूडेड विद इन द कैटेगरी ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन, एंड ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट बोथ ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन चेंज्ड ओवर टाइम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन. ये दोनों ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन जो थे इनमें चेंज भी आया टाइम के साथ साथ, और ये नए तरीके से इमर्ज होने लगे, नए तरीके से हमारी सोसाइटी में इमर्ज होने लगे. इसके बारे में हम बात करेंगे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, कि वहाँ यहाँ जो दो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये दोनों, एक जो विष्णु का इनकारनेशन है जो लेटी हुई मूर्ति है उनकी बहुत पुरानी, और यहाँ जो दूसरे फॉर्म में दोनों विष्णु के अलग अलग अवतार हैं और दोनों की पूजा होने लगी है. तो ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेचू देख रहे हैं, दैट वॉज रेफर टू द ग्रेट ट्रेडिशन. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन आवर सोसाइटी लोकल यूनिवर्सली, सबके द्वारा, ब्राह्मण एंड प्रिस्ट सबके द्वारा इसको अडॉप्ट किया जा रहा था. और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं एक ट्राइबल सोसाइटी के द्वारा बनाया गया वुडन स्टेच्यू को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ विष्णु. एक लोकल ट्राइब्स थे जो ये वुडन ऐसी स्टेच्यूज बनाते थे और उसकी पूजा करते थे. उसको जगन्नाथ टेम्पल जो उड़ीसा का बहुत ही फेमस टेम्पल है, और वहाँ पे इनको इस्टेब्लिश किया गया और ये विष्णु के एक नए रूप में अवतरित हुए और इनको जगन्नाथपुरी यानी विष्णु के एक नए रूप में इनको एक्सेप्ट किया गया. तो दिस इज़ द complete example of little form. So this was the great tradition and this was the little tradition. So in the second video we will discuss mainly of this tradition and the other events. In this video, that's all.